بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عید کا دن تھا۔ ہمارے گھر میں مہمانوں کا تانا بندھا ہوا تھا، مگر امی صبح سے مجھے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ امی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، مگر مہمانوں کے سامنے کہہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ میں نے پوچھا، امی کیا بات ہے؟ صبح سے آپ مجھے بلا رہی ہیں، سہیلیوں کے ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دیا۔ اماں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر رازداری والے انداز میں کہا کہ میں تم سے بہت ضروری کام کروانا چاہتی ہوں۔ اگر تم یہ کر لو گی تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی، تمہاری ہر بات مانوں گی۔ اچھا اماں بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے منہ بنا کر کہا، بیٹی تو جانتی ہے نا کہ گلی کے نکڑ پر ایک فقیر بیٹھا رہتا ہے، وہی جس نے اپنا چہرہ ایک طرف سے ڈانپا ہوتا ہے، اس کے بال گندے میلے سے ہیں اور سر پر ایک امامہ بھی رہتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں اکثر اس کے کشکول سے کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہوں۔ ہاں اماں یاد آیا، وہی گندا میلا سا فقیر۔ بیٹی ایسے نہیں بولتے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا نہیں لینا چاہیے۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اماں، نہیں کہوں گی، لیکن تم کیا چاہتی ہو کہ میں جا کر اس فقیر کے کشکول سے تمہارے لیے پیسے نکالوں؟ نہیں بیٹی ایسا نہیں کہہ رہی، تم یہ لو۔ حاقی رنگ کا لفافہ امی نے میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اسے جا کر اس کے کشکول میں ڈال دو۔ دیکھو نا، ہمیشہ ہم ہی اس کے کشکول سے پیسے نکالتے رہتے ہیں اور وہ بیچارہ تو بولتا بھی نہیں۔ ابھی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تم جاؤ، میں نے کچھ روپے دیے ہیں، جا کر اس کے کشکول میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے امی، جاتی ہوں۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سنو بیٹی، آتے جاتے رک مت جانا اور اس لفافے کو کھول کر مت دیکھنا، ورنہ فقیروں کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ اماں نے مجھے ڈرایا۔ میں محتاط ہو کر گھر سے نکلی، مگر صحن میں ہی بڑے چاچو مل گئے۔ انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ حقی لفافہ دیکھا تو حیران ہو کر بولے کہ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو، وہ بھی عید کے دن؟ چچا جی، اماں نے مجھے فقیر کے پاس بھیجا ہے، بس اسی کو یہ لفافہ دینے جا رہی ہوں۔ امی کہتی ہیں کہ فقیروں کو افطار نہ دینا چاہیے، شاید وہی دیا ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو چچا نے مجھے روک لیا۔ بیٹی تم خود کیوں جاتی ہو؟ جاؤ، جا کر اپنی اماں سے کہہ دو کہ چچا نے مجھے کسی کام کے لیے بلایا ہے۔ چچا مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چچا نے مجھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے بیچ دیا۔ میں بھی خوش ہو کر اماں کو لفافہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ اماں اس وقت مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور خود کالی چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، میں بھی اماں کے آس پاس ہی گھوم رہی تھی۔ میں اور میری چچا زاد بہنیں عید کے دن گھومنے پھرنے گھر سے نکل پڑی تھی۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ اماں نے بھی اپنی چادر درست کی اور وہاں سے نکل پڑی ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اماں بھی دروازے سے باہر آ گئی ہیں۔ اماں کے ہوتے ہوئے مجھے بہت سہارا رہتا تھا۔ اتفاق سے اماں بھی اسی راستے پر جا رہی تھی جس راستے سے میں اور میری سہیلیاں جا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر چچا بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے چچا کو پیچھے مڑ کر آواز دینا چاہی تو انہوں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ خدا جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا۔ میں بھی خاموش ہو گئی اور بولی نہیں۔ ہم درمیان میں تھے، ہمارے پیچھے چچا جان آ رہے تھے، جبکہ اماں آگے جا رہی تھی۔ گلی کی نکڑ پر جا کر اماں زمین پر بیٹھ گئی اور اس فقیر کے کشکول میں وہ لفافہ رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا۔ ان کے پیچھے ہم آ رہے تھے اور ہمارے پیچھے چچا جان۔ ان کو دیکھ کر اماں کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اماں ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور فقیر کے کشکول سے وہ لفافہ نکال کر اپنے ہاتھ میں چھپا لیا۔ چچا جان آگے بڑھے اور امی کو غصے بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر فقیر کی طرف دیکھا جس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور وہ تو کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ چچا نے آگے بڑھ کر اس کا کپڑا ہٹایا تو وہ چیخ پڑے۔ امی کو دیکھ کر انہوں نے بلند آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ ابھی بھائی صاحب کو بلاتا ہوں، یقیناً ان کو یہ ساری بات بتانا پڑے گی، ورنہ میں تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال سکتا۔ چچا کی بات سن کر ہم بچیاں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اسی وقت ابا بھی جیپ میں سوار ہو کر اسی جگہ آ گئے۔ ان سب نے فقیر کو وہاں بیٹھے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی اور اماں کو برا بلا کہتے ہوئے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور ہمیں بھی بیٹھنے کا کہا۔ ہم سب ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ گھر پہنچ کر چچا نے ہم سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کا کہا۔ اماں کے ساتھ ابا کا رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، جبکہ ابا شدید غصے میں لگ رہے تھے۔ ہم لوگ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر سے شور کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ ابا اور چچا کو بڑی مشکل سے دادا ابو نے چپ کروایا تھا۔ امی تو چچی کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، جبکہ ابا برا بلا کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ گھر میں تناؤ کی کیفیت قائم تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ہنستے بستے گھر کو کیا ہو گیا ہے۔ عید والے دن یہ بدمزگی ہو گئی تھی۔
हमारी सारी ईद की खुशियाँ हाक में मिल गई थी। ईद इसी तरह गुजर गई। हम सब ने किसी ने भी ईद की खुशियों का लुत्फ नहीं उठाया। 1 महीने का अरसा गुजर गया। अम्मा और अब्बा में नाराज़गी बरकरार थी। यहाँ तक कि अब्बा ने अम्मा को 3 लफ्ज़ बोलकर अपनी ज़िंदगी से ही खारिज कर दिया। वो दिन हम पर क़यामत बनकर टूटा था जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हैं। उस वक्त हमारी हालत क्या थी ये मैं और मुहिब ही जानते थे। मुहिब मेरा छोटा भाई था, खुद भी कम उम्र था और बात बात पर रोना शुरू कर देता था। अम्मा के जाने के बाद हम दोनों बहन भाई रातों को उठ उठ कर रोते थे। अम्मा के कमरे में जाते तो अजीब सी वहशत महसूस होती थी। मैं अब्बा के घर में ही पलकर जवान हुई थी, यहाँ तक कि मेरे रिश्ते आने लगे थे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को नाना के घर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। अब्बा ने साफ साफ कह रखा था कि इसे किसी भी सूरत अपनी माँ के पास नहीं भेजना, वरना मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसीलिए चची जान मुझे घर से निकलने ना देती थी। मैं चची जान की तरबियत में ही पलकर जवान हुई थी। चची जान मेरी हाला भी थी, क्योंकि मेरी अम्मी और चाची आपस में बहनें थी और इसी वजह से हम लोग एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के तहत रहते थे। मगर आजकल चची ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। अब्बा को न जाने क्यों मेरी शादी की जल्दी थी। उन्होंने मेरा निकाह वाजिद से कर दिया। वाजिद अगरचा एक माकूल किराने से तल्लक रखता था और उसकी अपनी दुकान भी थी, मगर शक्ल सूरत का हास नहीं था, इसलिए मैं उसे हास पसंद नहीं करती थी। मगर फिर शादी का दिन भी आ गया था। मैं अपनी अम्मा के बगैर बहुत उदास हो रही थी। चाची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे रह रहकर अपने अब्बा पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी माँ को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का कसूर किया था। मुझे तो अब्बा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चची के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए चची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे हकीकत बता दें कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि अब्बा ने अम्मा को घर से निकाल दिया, वो भी इतनी मामूली सी बात पर। मेरी बात सुनकर चची ने मेरे आंसू पूछे और बोली, बेटी तुम फिक्र करती हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस सामने सारा कसूर तुम्हारे बाप का नहीं है, कुछ गलती तुम्हारे माँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की सारी कहानी सुना दूंगी, मगर मुझसे वादा करो कि कभी भी अपने बाप के सामने इस बात का गिला नहीं करोगी कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ ज्यादती की है या फिर किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी की है। मैंने चची से वादा किया, तभी उन्होंने जाकर मुझे सारी बात बताई। बेटी ये बरसों पुरानी बात है, मगर शादी से पहले मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी गुजारने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा शोहर तुमसे नफरत करे। आज से सालों पहले की बात है। मैं और बाजी अपने बाबल के आंगन में खुशबाश अपनी ज़िंदगी के दिन गिन रहे थे। हमारी शादी की उम्र तो हो गई थी, मगर बाबा हमें पढ़ाना चाहते थे। यही वजह थी कि बाबा चाहते थे कि हम लोग घर के काम ना करें बल्कि अपनी पढ़ाई करें, और इसी मकसद के लिए उन्होंने घर में एक उस्तानी का बंदोबस्त भी किया था। मगर चूंकि गांव में पढ़ाई का रवाज नया नया आया था, हम दोनों को पढ़ने की आदत भी नहीं थी और ना ही हमें पढ़ाई के बारे में कोई ज़्यादा मालूमात थी। उस्तानी जी ने अब्बा को बताया था कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती थी और फिर घर भी इतना बड़ा था कि इसे संभाले बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। अब्बा ने इस मसले का हल भी निकाला और एक नौकर को घर ले आए। यह बड़ा ही मेहनती लड़का था। इसने हमारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सुबह सुबह यह हम दोनों बहनों को नाश्ता तक बना कर देता और सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहता। हम ऊपर वाले कमरे में बैठकर उस्तानी जी के साथ पढ़ाई में मसरूफ़ रहती। हमारे दिन बहुत खूबसूरती से गुजर रहे थे। हमें पढ़ाई रास आ गई थी। बाजी का जहन तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। मैं कुछ कुंद जहन वाक़ हुई थी। मगर एक दिन उस्तानी जी हमें पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि बाजी किसी ख्याल में गुम हैं और मुस्कुराई जा रही हैं। उस्तानी जी ने आपी को डांटा, मगर उन पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। रात को हम लोग सोने के लिए लेटे तो आपी कहने लगी कि सबीहा तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है, काफ़ी देर तक पढ़ूंगी तो तुम्हारी नींद खराब होगी। आपी की बात सुनकर मैंने ताबेदारी का सबूत देते हुए दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि आपी ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला है। उस दिन अब्बा कहीं गए हुए थे, उन्होंने अगले दिन आना था, मगर रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी कि आपी पढ़ाई में मसरूफ़ होगी। दस्तक भी हल्की सी हुई थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बाबा जान खड़े थे। बाबा आप इस वक्त?
मैंने हैरत से पूछा, हाँ बेटी, मैंने सफ़र का इरादा तर्क कर दिया है। मौसम ही कुछ ऐसा था कि सोचा सुबह सवेरे चला जाऊंगा। हो सकता है कि रात में बारिश भी हो जाए, और वैसे भी रात का सफ़र कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। अब्बा मुझसे बातें कर रहे थे कि साथ वाले सर्वेंट क्वार्टर से खटपट की आवाज़ें आने लगी। अब्बा ये देखकर चौंक गए कि सर्वेंट क्वार्टर में से हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी। हालांकि इस वक्त हमारा नौकर अल्ताफ गहरी नींद सो जाता था। अब्बा ने शक भरी नज़रों से इधर उधर देखा था, जबकि घर में मुकम्मल सन्नाटा था। तब अब्बा ने बुलंद आवाज़ में अल्ताफ को पुकारा, अल्ताफ क्या तुम सो रही हो? अब्बा की आवाज़ सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि वो बड़ा ताबेदार मुलाजम था। अब्बा ने मुझे सारे घर की बत्तियां रोशन करने का कहा था। उस वक्त बिजली ताकतवर नहीं होती थी, मगर हमने ज़्यादा सारे बल्ब लगा रखे थे। एक पल में घर के बाहर वाला हिस्सा रोशनी में नहा गया था, जबकि सर्वेंट क्वार्टर में अभी तक खामोशी छाई हुई थी। अब्बा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया, मगर अल्ताफ ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्ताफ जवाब क्यों नहीं दे रहे? बाहर निकलो। अब्बा न जाने क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे, हालांकि वो हमेशा अपना दरवाज़ा बंद ही रखता था। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो अब्बा ने चौकीदार को बुलवाया, और चौकीदार ने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के पास अल्ताफ ही नहीं बल्कि आपी भी खड़ी थी। उनका रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर परेशानी, निदामत, शर्मिंदगी, न जाने क्या किया था। अब्बा उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में पागल हो गए थे। उनकी आंखों में खून उतर आया था। इससे पहले कि अब्बा उनकी जान ले लेते, उनका शोर सुनकर अम्मा भी कमरे से भागे भागे बाहर आ गई। आकर देखा तो शौहर बेटी को बुरा भला कह रहा था। अम्मा की तो जान पर बान आई थी। वो आपी को बचाने आई तो अब्बा ने उन्हें भी धक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारी ही गलत तरबियत की वजह से मेरी बेटी इस मुकाम पर पहुंची है। अरे तुमसे तो एक बेटी भी नहीं संभालेगी। तुमने तो कहा था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी। ये नाम रोशन किया है मेरा। अब्बा का गजबनाक लहजा देखकर मेरा तो दिल कटा जा रहा था। खुदाया तुमने ये क्या कर दिया आपी? आपने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा? खुदा जाने ये चक्कर कब से चल रहा था। उस दिन बाबा जान आपी को जान से मारना चाहते थे, तभी उन्होंने एक अनोखा फैसला किया। हम सबको तैयारी बांधने का कहा और आपी को अल्ताफ भाई के साथ उस कमरे में बंद कर दिया और हम सब लोगों को सामान बांधने का हुक्म दिया। हुक्म सुनकर हम में तो हिम्मत ना थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए। सामान बांधने का मतलब था कि हम सब किसी दूसरे शहर जा रहे थे, मगर अब्बा के इरादे खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कने को कहा था। ये सुनकर मेरी तो रूह कांप गई। जल्दी से मैंने अम्मी को बताया और अम्मी रोती चिल्लाती बाहर आ गई। अब्बा के पांव पकड़े। खुदा के लिए करीम बश ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारी ही बदनामी होगी। खुदा के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दो। अगर तुमने उसे मार दिया तो लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे कि जवान बेटी को न जाने क्यों जिंदा जला दिया। ये सोचकर अब्बा भी सोच में पड़ गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर आपी को कमरे से बाहर निकाल दिया। आपी की हालत तो ऐसी थी जैसे काटूं तो बदन में लहू नहीं था। हम सब परेशान खड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। आपी भी रो रही थी और वो अब्बा के पांव पड़ गई। अब्बा खुदा के लिए मेरी जान ले लें, लेकिन उसे जाने दें। अब्बा को सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कते देखकर वो भी उनके पांव पड़ गई थी। उसका जुनून देखकर अब्बा को और गुस्सा आ गया। अब एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो तुझे भी इसी के साथ जिंदा जला दूंगा। मनहोस बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप की इज्जत को यूं नीलाम कर रही थी। अब्बा का गुस्सा देखकर आपी चुप हो गई, मगर मैं जानती थी कि वो भी जिंदा नहीं रह पाएगी। अल्ताफ भाई के साथ उसकी मोहब्बत न जाने कब से चल रही थी, जबकि मैं इस मामले से बेखबर थी। पता होता तो कुछ न कुछ कर ही लेती और वक्त पर उसे इतला कर देती। अब्बा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इससे पहले कि अल्ताफ भाई की दर्दनाक चीखें हम सबको सुनने को मिलती, कुदरत ने हमें एक और मौका दिया और अब्बा की गाड़ी खराब हो गई। एक लम्हे के लिए उनकी तवज्जो हम सब से हट गई। इतने में आपी मेरे पांव पड़ गई। खुदा के लिए जाकर दरवाज़ा खोल दो, किसी भी बहाने चली जाओ और चौकीदार से कहो कि अल्ताफ मर गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उनकी हालत देखकर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। मैंने चौकीदार की मिन्नत की, उसे कुछ पैसे भी दिए। उसने खुदा जाने कैसे अल्ताफ को वहाँ से बाहर निकाल दिया और हमारे होते ही अल्ताफ को वहाँ से बाहर भेज दिया। तब तक अब्बा भी वापस आ चुके थे। वो बहुत गुस्से में थे। उनके आने तक सर्वेंट क्वार्टर आधा जल चुका था। वो हमें लेकर अपने अबाही गाँव आ गए। यहाँ आकर मेरी शादी वसीम से, चचा के छोटे बेटे से कर दी गई और आपकी शादी बड़े बेटे यानी तुम्हारे अब्बा से कर दी।
हमारी तरफ से तो सब सही हो गया था। हम समझते थे कि हालात बराबर हो गए हैं, मगर ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं। जल्द ही हमारे शोहरों को इल्म हो गया कि दरअसल बात क्या है, और इस खबर ने हमारी इज्जत को सिफर करके रख दिया। ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई थी, जबकि अब्बा के मुताबिक ये सब हमारे अपने कर्मों का सिला था। हम लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी को समझौता करके कबूल कर लिया। फिर इस बात को 10-15 साल गुजर जाने के बाद अपनी वफादारी और हिदमत से हमने इस घर में जगह बना ली। चची भी हमें वो मुकाम देने लगी जो कि बहू को दिया जाता है। मगर फिर हमारी ज़िंदगी में वो तूफान आया जिसका हमने सोचा भी नहीं था। आपी को कहीं से मालूम हो गया कि अल्ताफ़ जिंदा है। वो उसको मिलने जाती। वो फ़कीर का रूपदारी हमारे घर के करीब आकर बैठने लगा। उसको शायद अभी अंदाज़ा नहीं था कि वो किस आग में हाथ जला रहा है। मैं आपी को मना भी करती थी कि वो इस सब से बाज आ जाए, मगर आपी ने अपनी रोज से बाज ना आने का जैसे ठान ली थी। वो रोज़ाना जाती और उस फ़कीर को कुछ ना कुछ देकर आती और उसके हाथों की चिट्ठी लेकर आती, और यूँ हत्तो किताबत का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि अब वो एक जवान बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने उसे मना भी किया, मगर वो मना नहीं हुई। अब तुम्हारी चचा को यह बात कैसे पता चली, ये तो मैं नहीं जानती। शायद कि हम दोनों बहनों की बातों से उन्हें इल्म हो गया होगा, या फिर कोई और इशारा पाकर उन्होंने अल्ताफ़ का सुराग लगा लिया जो कि फ़कीर बना बैठा था। अब तुम्हारी माँ को कहरो गज़ब से कौन बचा सकता था, जबकि उसने इतने सालों बाद अपने शोहर के साथ बेवफाई की थी। हालांकि ऐसा करना एक औरत को ज़ेब नहीं देता था। अब अपनी माँ को भूल जाओ बेटी, उसने वो गलती की है जो उसे नहीं करना चाहिए थी। ऐसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलती। चची की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। चची ने मुझे तसल्ली दी और रुसद करके मुझे मेरे घर भेज दिया। आज मैं अपने शोहर के साथ खुश हरम में हूँ और कोई ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे शोहर के दिल में शक का बाल भी आ जाए। खुदा सभी औरतों को ऐसी गलतियों से महफूज रखे। आमीन।